Romanticizing my life changed my fucking life. Where's my cutter? Hi, how are you guys? Sorry for the show. Give 1 sec. Let me remove the plastic and then we'll talk because otherwise it'll be too much show. Hi, you guys. Hi, and welcome back. I'm Shriyam, for those of you who don't know, and this is Becoming, where we're honest about everything in our 20s and how to rebuild our life when we are having a quarter life crisis. Because let's be real, we all are. I'm going to explain this to you with some examples of things that have happened in my life that truly broke me, and they have genuinely changed the course of my life in ways I couldn't even imagine. One such thing like this was breaking up with a guy who I thought I loved more than life itself, and I could never leave him because he was this best friend of mine, and I had assumed and believed in my head that we were supposed to be soulmates and whatnot. And really fastly I realized that, bro, this guy is cheating on me and this is bullshit. And then I dumped his ass. And the universe presented me with relationships that I could have never imagined I could have had, right? So just stuff like this. I hated my boss, I quit my job. After I quit my job, I met my best friend. Right after I quit my job, I met my best friend of today, who I now work with as well. I know that I have examples that lead me to believe that my genuine understanding of life at large, which is that जो होता है मेरे अच्छे के लिए होता है, is a very fair presumption. But at the same time, I do feel like there's two things we need to talk about here. At what point do you need to start sitting with yourself and being like, ये हो गया है और मेरे को इसके साथ डील करना पड़ेगा. I don't think optimism is a belief, or having faith that life leads you where you are supposed to be is a belief that has to make you someone who is not aware of their own part that they play in these things happening to them. I don't think self-awareness is something that needs to leave the chat every time we talk about optimism. And B, I don't think it's a redundant belief, because it's just not being applied well doesn't mean that it's absolutely useless, right? Romanticizing your life is different from प्लेइंग प्रिटेंस विद योर सेल्फ. मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मेन कैरेक्टर समझती हूँ और समझती थी बचपन से ही. मुझे लगता था मैं बहुत स्पेशल हूँ और सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ इसलिए होती है क्योंकि आई एम गॉड स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर एंड वॉट नॉट. But what I was not realizing was that this radical optimism was also this way of me to avoid responsibility for my own life. Because ठीक है, आपके साथ बकवास हो रही है, मैं मानती हूँ, मतलब हर चीज़ आपकी गलती नहीं हो सकती, बट एट द सेम टाइम काफ़ी चीज़ें आपकी गलती हो सकती हैं ब्रो. काफ़ी चीज़ें आपकी गलती हो सकती हैं अगर आप मानने पे आओ तो, ठीक है. So I kind of moved away from this space of I believe that everything happens for the best to I believe everything happens for the best, but I'm not going to turn a blind eye to the role I play in things that suck right now, because I know that things suck and they might lead you to better doors and stuff like that. But कभी कभी सिर्फ ये भी स्ट्रेट फैक्ट हो सकता है कि आपने बकवास करी है. नाउ हैविंग सेड दैट, डू आई स्टिल बिलीव दैट हैविंग पगलू delusional optimism is essential? Yes, I do still believe that, especially as people of today that don't have much to look forward to. Many of us are lonely, we don't have great community, our families are going through it, the world is in a shitty place. I truly believe that optimism and living in the moment and being present and all these things are imperative, bro. I can't live without the false reality that I have built for myself, because that's what brings me comfort. It's what gives me hope that there is a point to do this for one more day. I don't think that there is anything wrong with being the main character of your life. I don't think there is anything wrong with hyping yourself up and being like, जा शेर जा, ये तेरी ज़िंदगी है और सब कुछ तेरे फ़ायदे में होता है. ये सब मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ बुरी बात है. अगेन, एज लॉन्ग एज आप अपने आप का बना नहीं रहे हो बेसिकली कि मेरे साथ तो बुरा होता रहता है. नहीं भाई, आप इनवाइट भी करते हो बहुत चीज़ें. आप नो बोलना सीखो ना. आप अपने आप को ये बोलना सीखो ना कि भाई ये मैं डिज़र्व नहीं करती, मैं क्यों टॉलरेट कर रही हूँ. आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखो मोर देन एनीथिंग. तो काफ़ी बुरी चीज़ें नहीं होंगी. या आप बदतमीज़ इंसान बनना बंद करो, या आप लोगों से फालतू के पंगे लेना बंद करो, या आप अपनी ग्रोथ दूसरों से कंपेयर करना बंद करो. फिर कम होती जाएंगी आपकी लाइफ में बकवास चीज़ें. वेज इन विच आई मेक श्योर आई हैव अ वेरी वेरी रोमांटिसाइज्ड लाइफ. ओके, I do small things for myself. I experiment with my body बहुत ज़्यादा. I get baby tattoos and things that don't have meaning to other people, or other things that people might think are absolutely insane to do. कि भाई women fancy पे tattoo करा लिया, women fancy पे दांतों में हीरे जड़वा लिए. कुछ भी ऐसे छोटी छोटी पगलू चीज़ें जो मुझे अंदर से खुशी देती हैं, ठीक है. दूसरी चीज़, बेसिकली मुझे एक बारी किसी ने बोला था कि जिसने भुगता वही गुरु, है ना. तो अगर आप मेरी शूज़ में कभी रहे ही नहीं हो तो आप मुझे किस बात की एडवाइस दे रहे हो. तो मैं सिर्फ उन लोगों की एडवाइस लेती हूँ जो मेरे शूज़ में रहे हैं.
Number 3, I have really tried very hard टू नॉट टेक एवरीथिंग सो पर्सनली कि शिट ये बंदा मुझसे बात नहीं कर रहा, फ़क मैं कितनी हॉरेबल इंसान हूँ और मुझे अपनी लाइफ के बारे में हर चीज़ चेंज करनी पड़ेगी और मैं पैथेटिक ह्यूमन बीइंग हूँ और मैं डिस्कस्टिंग फ्रेंड हूँ। भाई हो सकता है उस आदमी का बुरा टाइम चल रहा हो, ठीक है, हो सकता है उसका बुरा टाइम चल रहा हो सकता है वो अभी नहीं हो राइट मेंटल स्पेस में। अगर इफ़ things are meant to be, they will be, right? I did my best, I do my best, I try every single day to be better. या तो वो पूरा नहीं पढ़ रहा, और पूरा नहीं पढ़ रहा तो हो सकता है एक दिन पढ़ जाए, या फिर वो पूरा पढ़ रहा है और उस बंदे के पास बैंडविड्थ नहीं है। तो दोनों चीज़ों में मेरा योगदान कुछ नहीं रह सकता ना उसमें, मतलब मेरी कंट्रोल से चीज़ें बाहर जा चुकी है इस पॉइंट पे। तो जो चीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर है, एंड दैट इंक्लूड्स रिलेशनशिप्स ऑल्सो, उनसे मैं बहुत लाइटली सेगवे ले लेती हूँ कि भाई सॉरी मेरे से नहीं होगा। नंबर 4, चाहे आपको मेरी ऑनेस्टी बदतमीज़ी लगे, चाहे आपको मेरी ऑनेस्टी ब्लंट लगे या जो मर्जी लगे, आई एम स्टिल ऑनेस्ट टू फॉल्ट, क्योंकि अगर मैं ऑनेस्ट नहीं होती तो मेरी नींद ख़राब होती है, और अगर मेरी नींद ख़राब होती है तो अगले दिन मुझे ऐसे स्मॉल मोमेंट्स ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। Number 6, I do more of the things that make people call me crazy, whether that's starting YouTube, whether that's starting content, whether that's moving to Delhi, whether that's moving to Bombay, whether that's leaving my first boyfriend, whether that's leaving my second boyfriend, whether that's anything, like anything that's slightly drastic and makes people call me crazy, I do more of that. Not please, अगर आप छोटे हो और आप मेरी बात सुन रहे हो, इसका ये मतलब नहीं आप लाइफ के साथ एकदम हरफन मौला हो जाओ। इसका ये मतलब है कि भाई अपनी दिल की सुनो सबकी, करो अपनी, मैक्स ऑप्टिमिज्म रहेगा आपकी लाइफ में, आई प्रॉमिस यू। आई हैव स्टॉप बिलीविंग दैट आई एम स्पेशल, आई हैव स्टॉप बिलीविंग दैट गॉड हैज़ टाइम टू फकिंग टेक आउट टाइम फ्रॉम देयर डे एंड लाइक फक माई लाइफ अप इन पर्टिकुलर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी सच्चाई है। मुझे लगता है आप अपने आप को डिलूड करते हैं ये बार बार बोल के कि शिट ब्रो लाइक सिर्फ मेरे साथ ही बुरा होता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बुरा सबके साथ होता है, और हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स अभी बहुत बड़ी हो, और हो सकता है मतलब आपकी प्रिविलेज थोड़ी कम हो, या जो भी है, आपकी प्रिविलेज थोड़ी ज़्यादा हो। एवरीबडी हैज़ दैट लॉट इन लाइफ, द सूनर यू गेट कंफर्टेबल विद योर लॉट द बेटर इट इज़। अपनी किस्मत के बारे में रोने से बुरा तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है भाई आपकी किस्मत ख़राब है, अब आप उसको चेंज कैसे कर रहे हो। सॉरी फ्लावर्स, सॉरी, आई डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट नाउ। ये अपने डॉक्यूमेंट सही करने में इतना डर लग रहा था, तो आई पुश माई सेल्फ एंड आई जस्ट गेट इट डन लाइक अ बैंडेड, क्योंकि मुझे सिर्फ जिस मर्जी रीज़न की वजह से भी इंटिमिडेशन हो रही है उस चीज़ से, वो चीज़ मुझे एंग्जाइटी दे रही है। तो अगर कोई मीनियल टास्क है जिससे मुझे पता है मेरा एंग्जाइटी लेवल फालतू में बढ़ने वाला है, मैं उसको पहले ही ख़त्म कर देती हूँ। भाई क्यों लेना है इतना लोड, जब ख़त्म करना है तो ख़त्म करना ही है ना, अभी करना है या कल करना है, नॉन नेगोशिएबल। तो आई फिनिश माई नॉन नेगोशिएबल इरिटेटिंग टास्क फर्स्ट, सो दैट द रेस्ट ऑफ द टाइम आई कैन डू फकरी। नंबर 8, आई टेक्स्ट रैंडम पीपल कॉम्प्लीमेंट्स नाउ, कि अगर मुझे किसी का काम जेन्युइनली अच्छा लग रहा है या कोई कुछ बढ़िया कर रहा है, तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ये लोग मेरे दोस्त बनेंगे और हम लोग लाइफ बनाएंगे साथ में, और ये वो शिट मुझे ये बोलना चाहिए, क्या मैं स्टूपिड लगूंगी नहीं लगूंगी, मैं किसी को भी मैसेज कर देती हूँ आगे से कि भाई तू कितना कूल है, तू कितनी कूल है, आप कितने कूल हो, क्या बढ़िया काम कर रहे हो, इनसेन ब्रो इनसेन, आई विश मेरे को भी सिखा दो ये, मेरे को भी सिखा दो वो। मुझे लगता है क्लोज माउथ्स डोंट गेट फेड एंड एवरीबडी नीड्स टू हियर हाउ कूल दे आर। तो बोल दिया करो भाई, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना सुंदर लगेगा, आई लव दीज कलर्स टुगेदर, पता है पिंक एंड येलो, गॉर्जियस, इट लुक्स लाइक अ होटल का वो, आई लव। अब मुझे याद नहीं है कौन सा नंबर है, बट मैं अपने आप से सच बोलना शुरू कर चुका हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने बकवास करी है, तो अब मैं इसको रिपेयर कैसे कर सकता हूँ, चाहे वो अपने साथ ही क्यों ना हो, कि मैंने अपने साथ ये बहुत गलत होने दिया या मैंने अपने साथ ये गलत किया, तो मैं उसको रिपेयर कर रहा हूँ अभी। तो काफ़ी मेरे को उससे ऑप्टिमिज्म फील होता है कि चाहे कुछ भी नहीं तो भाई मैं अपनी टीम पे तो खेल रही हूँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं वो एक्वायर्ड टेस्ट, उससे बहुत हेल्प हो जाता है ऑप्टिमिज्म होने में, कि शायद मैं अपनी पूरी लाइफ, या तो मैं अपनी पूरी लाइफ अपने आप को समझाते हुए फिरूँ कि आप मुझे समझ नहीं रहे हो, मैं अलग हूँ, प्लीज़ मम्मी आई एम डिफरेंट, आई एम नॉट लाइक दैम, या तो आप मुझे पूरी लाइफ ये करते रहो, या आप एक्सेप्ट कर लो कि भाई शायद लोगों को मैं नहीं समझ आऊँगा, वो ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत लोग समझ नहीं आते, इसमें कोई बुरी बात नहीं। आई ट्राई टू फाइंड द फनीज़, कि शिट मेरे साथ ये कितना बुरा हो गया, अब इसमें मैं जोक क्या ढूंढ सकती हूँ, या इसमें मैं अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढ सकती हूँ कोई, कि अगर मेरे साथ बकवास होना ही है तो आई माइट एज वेल लाइक यूज़ इट टू माई एडवांटेज ना। तो ये है कुछ तरीके जिनसे आप अपनी लाइफ का ही हा लेवल अप रख सकते हो। आई होप दिस हेल्प्ड, बिकॉज अब मुझे ये कूड़ा साफ़ करना पड़ेगा, बट मुझे आपको अपने फाइनल बुकेज भी दिखाने हैं। रुको, ये मैं सारे फ्लावर्स आज लेके आया हूँ। सो प्रिटी, वाओ, लव।